Hello students, my name is Deepika and welcome to Numerical Shala. Today we will discuss these 4 questions which are very basic in nature but are very important. So let us starting with question number first. Question number first said, state one difference between kilowatt and kilowatt hour and express kilowatt hour in joule. So what is the difference between kilowatt and kilowatt hour? See, kilowatt is what? Kilowatt is the unit of power. We know that the unit of power is watt. What is the unit of power is watt. And there is kilowatt. It means that when we multiply it by it 1000, then it will become kilowatt. Understood? And the second thing is kilowatt hour. Kilowatt hour. What is this? This is the commercial unit of electrical energy. What is this? Commercial unit of electrical energy. And what is its value? So we can find it. Kilowatt hour. Okay, let's derive it. Kilowatt means 1000 watt into hour. So 1 hour has 3600 second. So now the value of this 36 into 10000. Okay, into में joule, because it is the unit of commercial unit of electrical energy and the energy has unit joule. So we can also write it 3.6 into 10 raised to power 6 joule. So this is the unit of electrical energy. Understood? What is the difference between kilowatt and kilowatt hour? Kilowatt is the unit of power and kilowatt hour is the unit of electrical energy, and we can say that it is a commercial unit and it has value 3.6 into 10 raised to power 6 joule. So this is the main difference between kilowatt and kilowatt hour. Let us move on the second question. So though it is very basic, but I know that some students have confusion in it, so I cleared out. Now question number second said, question number second is, what is meant by a solenoid? Question number second, what is meant by a solenoid? What is a solenoid? So solenoid is a, we can say that in simple words, it is a copper wire insulated in form of a helix. Helix is what? It is like a spring like this. Okay, so it is insulated on some insulating material. It is wrapped on some insulating material in form of a helix and whose length is greater than its diameter. Length is greater than its diameter. Or in simple words, we can say that a copper wire which is wrapped on some insulating material in form of a helix is called a solenoid. So what is this? This is a copper wire. This is a copper wire. Suppose that this is some insulating material. Understood? And we wrap a copper wire on it in form of like this. Okay? So when we wrap it in form of like this, then the thing that is made is, we can say that it is in form of a solenoid. अब solenoid behave कैसे करता है? Second question, इसका second part ये है, how does a current carrying solenoid behave? अब ये solenoid अगर current carrying हो तो, अगर हम इसमें current flow करा दे तो ये कैसे behave करेगा? So suppose that हमने इसमें करंट फ्लो करा दिया, ये बैटरी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है, and this one is like this.
बीच में हमने यहाँ पे एक की भी यूज कर ली। अब क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इधर है तो करंट ऐसे ही फ्लो होगा, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा, ऐसे ये करंट हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे एंड दिस वन इज ऐसे एंड दिस वन इज ऐसे, और ये आ गया हमारा, ये आ गया करंट, ठीक है। सो ये तो हो गई हमारी शेप। अब ये बिहेव कैसे करता है? सो व्हेन करंट पासेस थ्रू इट्स, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम यहाँ इस एंड से देखते हैं, इस वाले एंड से देखते हैं, चलो ऐसे देखते हैं ये वाला एंड, तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब कि करंट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। अब इस एंड पे आ जाओ, अब इस एंड पे आ गए। अब यहां से हमें कैसे दिखाई दे रहा है? देखो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें ये जो करंट है, जो ये डायरेक्शन है इसकी, ये ऐसे दिखाई दे रही है, ऐसे, ये क्योंकि ये देखो ये यहां से रैप हो रही है ना, ऐसे जा रही है, ऐसे। सो ये हमें कैसे दिखाई देगी? अगर हम इसको देखेंगे इस डायरेक्शन को, भाई करंट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ये आया, ऐसे गया, ये आया, ये गया, ये आया, और ये यहाँ से ये आया, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन गया, ये हमारा कुछ ऐसे बन गया। सो ये कैसे बिहेव कर रहा है? इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी है? हमारी क्लॉकवाइज। इसको अगर और सिंपल टर्म्स में बनाएं तो ये कैसे बनेगा? क्योंकि इधर आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको यहाँ से भी ऐसे ही दिखाई देगी कि ये तो एंटी क्लॉकवाइज है। इसको और थोड़ा सा सिंपल बनाते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंपल बनाते हैं। सपोज दैट ये हमारा कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है और इस पे हमने ऐसे रैप कर दी हमारी जो कॉपर वायर है, ठीक है। ये हमने कॉपर वायर इस पे रैप करते हैं, समझ रहे हो ना? आपको शेप कुछ ऐसे दिखाई देगी। सपोज दैट ये कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है और इस पे हमने ऐसे ये वायर रैप कर दी है, ठीक है। अब हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया है? हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, और ये हो गई हमारी की जो कि क्लोज्ड है, और ये जब यहाँ से गई है तो ये वायर जो है वो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे जा रहा है मीन्स दैट ऐसे अंदर से जाके ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। अब वही जो मैंने आपको अभी जस्ट 2 मिनट्स पहले बताया था, नॉर्थ पोल जब एंटी क्लॉकवाइज हमें दिखे, तो अगर हम इस एंड से खड़े हो रहे हैं, हम यहाँ पे इस एंड से देख रहे हैं, इस एंड को ध्यान से देखो, इस वाले एंड को, तो वायर ऐसे है और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, मतलब जो ये करंट जा रहा है ये ऐसे जा रहा है, मतलब कि मुझे कैसे दिखाई दे रहा है? क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंड कैसे बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह, क्लॉकवाइज। तो ये वाला एंड कैसे बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरह। अब इधर आ जाओ इस वाले एंड पे। अगर मैं इस वाले एंड पे आती हूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मुझे ये वायर ऐसे दिखाई दे रही है, मतलब कि यहाँ से ये वायर ऐसे जा रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इस वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब ये कैसी हो गई? एंटी क्लॉकवाइज हो गई। एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो यहाँ पे कैसा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। यहाँ पे कैसा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। तो हमें इस एंड पे तो नॉर्थ पोल जैसा दिखाई दे रहा है और इस एंड पे हमें कैसा दिखाई दे रहा है? साउथ पोल। तो ये जो सोलिनॉइड है, जब इसमें से करंट फ्लो हुआ तो ये किस तरीके से बिहेव करने लग गया? एक बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट के पास भी यही होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। सो व्हेन ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड, व्हेन द करंट फ्लोज इन अ सोलिनॉइड, इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट।
सो थर्ड वन इज, इसी का थर्ड वन है गिव इट्स मेन यूज। इसका यूज क्या है? तो भाई देखो इसका यूज क्या है कि जब भी हम इसके अंदर कोई भी मटेरियल रखते हैं ये इसको मैग्नेटाइज कर देता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करता है। सो व्हेन वी प्लेस्ड अ सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड इट देन इट विल मैग्नेटाइज इट एंड मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा कि ये पोल्स कैसे बनते हैं। जिस एंड से हमें क्लॉकवाइज दिखे वो एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिस एंड से हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फॉर अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड, सपोज करो यही सोलिनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें दिख रही है। देन विच ऑफ द 3 पॉइंट्स हैज फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम विच हैज मिनिमम। मतलब यहाँ हमें कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक यहाँ सेंटर में पॉइंट है ए, एक यहाँ पॉइंट है बी और एक यहाँ एंड पे पॉइंट है सी। तो इसने कहा है कि कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो इसको आप पॉज करें वीडियो को और खुद से सोचें कि क्या हो सकता है, ठीक है? फिर आप उसको वीडियो को प्ले करना। देखो जो हमारा ये सोलेनॉइड है, अगर हम सेंटर में कोई भी पॉइंट देखते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। ये चीज आप याद रखोगे क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन क्लास 12th में दे रखी है और जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई, ठीक है? और अगर हम इसके बाहर देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो वो क्या होती है? 0। बी पॉइंट पे आप देखो, ए पॉइंट पे मैक्सिमम है मैग्नेटिक फील्ड, बी पॉइंट पे 0 है और एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मतलब सी पॉइंट पे वो हाफ होता है एज इन द सेंटर। तो सेंटर पे कितना है? म्यू नॉट एन आई बाय 2। तो यह सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भाई ए पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। सेंटर पे अगर यहाँ रखें तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, यहाँ बाहर रखें तो वो 0 होगी। भाई ऑलमोस्ट 0 ही होगी, कॉमन सेंस भी लगा लो अपनी, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इसी के चारों तरफ ही तो होंगी और यहाँ एंड पे रखेंगे तो वो कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड हाफ होगी। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद भी नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख सकते हो कि ए पे मैक्सिमम होगी, सी पे हाफ होगी और बी पे 0 होगी। आई होप आपको ये चीजें क्लियर आउट हुई होंगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल आपका बेस्ड है पावर पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। तो ये कैसे होगा चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अ बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट 100 वाट, हमने लिख लिया, पावर 100 वाट है और वोल्टेज है 200 वोल्ट एंड फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, हमें इसकी रेजिस्टेंस मेजर आउट करनी है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है। इफ रेट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट का रेट कितना है भाई? 4.60। तो हमें टोटल इसका कॉस्ट भी बताना है, ठीक है? तो क्वेश्चन सिंपल है। आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है VI, बट यहाँ पे तो आर पूछा है, आर हमारे फॉर्मूले में है नहीं, बट हम आर मेजर आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखो हमें पता है V विच इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। तो देखो I की जगह मैं यहाँ पे पुट कर दूं V बाय R, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा? V इंटू में V बाय R, सो इट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो ये वैल्यू आ गई हमारी पावर की, ठीक है? पावर विच इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो यहाँ पे देखो पावर की वैल्यू दे रखी है 100, V स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 200 इंटू 200 बाय R। तो यहाँ से R जो है वो क्या आ जाएगा? 200 इंटू 200 बाय 100 कट जाएगा, ये आ गई हमारे पास 400 ओम। सो R की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 400 ओम। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा सोल्व। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है ये देखो। देखो सेकंड पार्ट में इसने कहा है
कि हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसलिए निकालनी है ताकि हम टोटल कॉस्ट निकाल सकें कि 1 मंथ में हमारा बिल कितना आएगा अगर ऐसे ही बल्ब हमारे 4 आवर्स डेली हम उसको ग्लो कराएं। यही पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एंड कैलकुलेट द कॉस्ट इफ रेट ऑफ 1 यूनिट इज 4.6। तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, अगर हम ऐसे ही 5 सच बल्ब क्या करते हैं, बर्न करते हैं रोज के 5 आवर्स तक, ठीक है, 4 आवर्स तक, तो टाइम दे रखा है 4 आवर्स। अब आप याद करो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती थी, पावर इनटू टाइम, एंड इट शुड बी इन किलोवाट आवर। भाई 1 यूनिट की वैल्यू यही तो होती है, 1 यूनिट विच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 किलोवाट आवर। तो हमें इस यूनिट में रिक्वायर्ड होगा तभी हम यूनिट निकाल सकेंगे। अब पावर वाट में दे रखा है तो इसको किलोवाट में करेंगे, तो 100 वाट अपॉन 1000 वाट इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 आवर्स, ठीक है, टाइम कितना है भाई यहाँ पे 4 आवर्स, तो ये कितना हो गया 0.1 इंटू 4, तो 0.4 हो गया, तो ये तो हो गया 0.4 किलोवाट आवर 1 बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही बल्ब कितने टोटल कितने हैं, 5 बल्ब्स हैं, तो ये हो गया 5 इंटू 0.4, तो ये कितना हो गया 2.0 किलोवाट आवर। इट मीन्स दैट 2 यूनिट निकल के आई है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 2.0 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो 2.0 किलोवाट आवर विच इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब 1 यूनिट का कॉस्ट है 4.60, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है भाई 4.60 रुपीज, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 2 इंटू 4.60, तो ये कितना निकल के आता है 200, 2 6 12, 2 4 8 और 9.20 रुपीज, ठीक है, सॉरी 0, हाँ भाई सही है, ठीक है 9.20 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बात है, जो की पॉइंट है, वो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, पावर इनटू टाइम। और सेकंड चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे मतलब कि हमें निकालना है उसको किलोवाट आवर में। तो आपका अगर वाट दे रखा है तो उसको किलोवाट में चेंज करो, टाइम सेकंड में दे रखा है तो उसको आवर में चेंज करो। जब सारी चीजों को आप कन्वर्ट कर दो तो उसकी टोटल वैल्यू निकालो और कॉस्ट देख लो 1 यूनिट का कितना है, उसी हिसाब से आप टोटल उसका कॉस्ट निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। तो ये क्वेश्चन बेसिक था हालांकि, बट इसमें हमें जो याद रखने वाली चीज थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि जो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। अ सिल्वर वायर हैज डायमीटर, एक वायर है हमारे पास, उसका जो डायमीटर है वो 0.4 mm है, ठीक है, एंड रजिस्टिविटी, उसकी रजिस्टिविटी दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। How much length of this wire required to make a 10 ohm coil? R दे रखा है 10 ohm, और हमसे ये पूछा है कि हमें कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी अगर उसका रेजिस्टेंस 10 ohm है। तो आप याद कीजिए कि ऐसा कोई फॉर्मूला है जो इन सारी टर्म्स को रिलेट करता है। तो हमें याद है कि एक फॉर्मूला है जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को रिलेट करता है, R विच इज इक्वल टू रो L बाय A, यही होता था। रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जो एक वायर होती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रो L बाय एरिया ऑफ दिस वायर इज पाई R स्क्वायर। अब देखो हमें डायमीटर दे रखा है तो हम R रेडियस इजीली निकाल सकते हैं, हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.2 mm, ठीक है। हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, यहाँ से लेंथ विच इज इक्वल टू R इंटू पाई R स्क्वायर बाय रो। अब यहाँ पे जो R है वो कितना है 10, पाई कितना है 22/7, R जो है वो हमारा क्या है
रेडियस कितना दे रखा है 0.2 इंटू 0.2। अब ये वैल्यू है mm में, तो 10⁻³ मीटर होगा, तो यहाँ पे 10⁻³ का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इसको हम यहाँ पे 7 लिख दे, इनटू में रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁸। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहाँ से देखो 22 को इससे करूंगी तो ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, नीचे मैंने इसके 100 लिख दिया, ठीक है, ये पॉइंट हटा के 100 लिख दिया, इंटू 7 इंटू 16, ऊपर 10 लिख दिया, ये पॉइंट हटा के, ये 10⁸ को ऊपर लेके गई तो ये कितना हो गया 10⁻⁻6, तो यहाँ से आ गया, ये 8 गया तो ये +8 हो गया, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और यहाँ से ये 4 से कट जाएगा, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 55 हो गया, ठीक है। 1 0 से ये 1 0 कट गई, तो यहाँ पे हमारा कितना बचा 55/70 बचा, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट को, 55 इंटू में 10⁻²/7 इंटू 10, तो 70, 5 से काट दो, 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, और ये हो गया 14, तो ये हो गया 1100/14। इसको आप डिवाइड कर लो, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, इजी था, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए था कि हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया को कैसे रिलेट करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। सो थैंक यू सो मच। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।